Next problem. Calculate deflection at C and D for given beam. Take E is equal to 200 kilonewton per square mm and I is equal to 1 into 10 raised to 7 mm raised to 4. The beam is given ABCD, which is supported at A and B, carrying UDL of 10 kilonewton per meter over the span 2 meter. Then a point load at D point, means from right support it is 1 meter of magnitude 20 kilonewton. For this beam, we have to find deflection at C and D. सबसे पहली चीज, ये जो E और I है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज लोड की किलो न्यूटन में और डिस्टेंसेस मीटर में है, उसको वैसे ही रखते हैं, तो ये वैल्यूज किलो न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो E इज गिवन 200 किलो न्यूटन, सो एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय हियर mm square, so 1 mm is equals to 1 by 1000 and square of it. बराबर है. 1 mm बोले तो 1 by 1000 मीटर. I can write here 200 as it is into 10 to the power 6 and kilo newton and square meter. This is value of E. Okay. Then we convert moment of inertia 1 into 10 to the power 7 and mm raised to 4 means divided by 1000 and raised to 4, because mm raised to 4. So it is equals to 1 into 10 to the power -5 and meter raised to 4. This is value of I. ये दो अपन ने पहले कन्वर्ट कर दिए E और I की वैल्यू. ओके, ये बाद में करने से मैंने यही कर दिया. अब ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा अलग है. जब अपन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उस वक्त मैं उसको बताऊंगा. तो पहले स्टेप अपनी एक एज यूजुअल to find out reactions for simply supported beam. अगर simply supported beam है तो पहली स्टेप है अपनी reaction. So here for finding out reaction we use condition of equilibrium, summation m is equal to 0. So moment at support A becomes 0. So here the equation would be 10 into 2. बराबर है, 10 into 2. This is लोड, टोटल लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में, 2 मीटर में 10 into 2, 20. It will act at the center here. So the moment will be, distance will be here 1 meter, 2 by 2, 1 meter. Okay, and it is clockwise, so positive sign. ये clockwise घुमाएगा. Then another force is here 20 and perpendicular distance from A to this D, it is 3 and it is also positive because this will give clockwise moment. और RB जो है यहाँ पर रहेगा अपना RB, reaction at support B. Okay, and here it will be RA. So RB into 4 is the span total and it is minus equals to 0. When we solve this, we will get the value of RB is 20 किलो न्यूटन. RB की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आ गई. Then summation Fy is equal to 0. Another condition of equilibrium, summation Fy is equal to 0. Fx तो नहीं, Fx already 0 है, horizontal में कोई फोर्स ही नहीं है. Okay, so here total upward forces, Ra is upward, so positive,
RB is also upward positive, minus downward forces is 10 into span is here 2. This is total load from UDL, and a point load minus 20, it is downward, so minus it becomes 0. RB की वैल्यू 20 अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर, so this put here 20, so from this we will get RA is equal to 20 किलो न्यूटन. RA और RB दोनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पर 20. ओके, RB हो गए. नाउ अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं. वी नो इक्वेशन EI d2y बाय dx स्क्वेयर इज इक्वल टू mx. ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर माइनस है, लेकिन अपन उसको कंसीडर कहीं नहीं कर रहे हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हो गया. अब m मीन्स मोमेंट एट x, ये यहीं पर है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली mx का यहाँ पे इक्वेशन स्पेस एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ. हियर दिस इज बीम कैरिंग UDL. ओके, सो हियर टेक मोमेंट एट एनी x पॉइंट. अपन एक सेक्शन ले लेंगे, बराबर है, यहाँ पर सेक्शन ले लेंगे. ये डिस्टेंस है अपना x पर मोमेंट अगर निकालते हैं तो वो मोमेंट आएगी RA इज इक्वल्स टू 20 एंड RB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन दोनों. ओके, सो 20 इंटू x, और ये मोमेंट देगा ऐसा, तो क्लॉकवाइज 20, सो पॉजिटिव, बराबर है. इस x पॉइंट पर अपन ने मोमेंट लिए RA की. अभी इसी दरम्यान UDL भी है, सो UDL इज ऑफ मैग्नीट्यूड 10. यहाँ से यहाँ तक टोटल UDL बन जाएगा 10x, और सेंट्रॉइड है x/2 पे, यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं अपन, तो यहाँ से x/2 मल्टीप्लाई बाय x/2 हो जाएगा. और ये UDL जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा अगेंस्ट x पॉइंट, बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज. सो हियर दिस इज. अब नेक्स्ट सेक्शन लेंगे यहाँ पर, बराबर है, और ये अपन x कंसिडर करेंगे. मैंने आपको पहले बताया, ये यहाँ तक तो हो गया. अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है इसके इधर की टर्म रिपीट हो जाना चाहिए जैसे कि वैसे. ओके, अब यहाँ पे अगर मोमेंट लेते हैं तो पहले आ जाएगा 20 इंटू x. ये पॉइंट अपन ने x कंसिडर कर दिया है, यहाँ से डिस्टेंस x है, तो 20 इंटू x, और वो भी क्लॉकवाइज लिख गया, बराबर, करेक्ट, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 इंटू 2 है ना, और x -1 ऐसा आएगा, तो मोमेंट में यहाँ पे वेरिएशन आ गया. ये इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है. अभी यहाँ पे अगर मोमेंट का इक्वेशन लिखूँ तो मैं कैसे बनेगा, देखो आप, वही इक्वेशन 20 इंटू x प्लस यहाँ पर मोमेंट ले रहा हूँ 20 इंटू x. अब ये UDL है, UDL 10, स्पैन ऑफ UDL 2 मीटर, बराबर है. हाँ, सेंट्रॉइड कितना रहेगा इसका 1 पे, और यहाँ से ये डिस्टेंस गिनना है तो 1 घटाना पड़ेगा x में से, तो ये बनेगा x -1 हो गया, और ये माइनस. ये सेकंड टर्म जो है ये वाली और ये दोनों सेम नहीं है ना. ये है खासियत इस प्रॉब्लम की. मैकेलेज मेथड में जैसे ही अलग अलग स्पैन पे अपन आगे जाते हैं तो पहले के जो है टर्म्स ये रिपीट हो जाना चाहिए. लिखना नहीं है सिर्फ, लेकिन वो मैच हो जाना चाहिए, है ना. इसलिए मैकेलेज ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि अगर UDL बीच में ख़त्म होता है तो उसको कंटिन्यू करो आखिरी स्पैन तक, जहाँ तक आपको x लेते जाना है वहाँ तक कंटिन्यू करो. और एक्चुअल प्रॉब्लम में तो है ही नहीं वैसे,
बाद में बताया गया है कि उसको फिर सब्ट्रैक्ट करो। ये कैसे? तो यहाँ पर ये जो यूडीएल है, मैं यहाँ पे दोबारा दूसरी सेम बीम निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो यूडीएल स्टार्ट हुआ है ऐसा, यहाँ पे एंड हुआ है, इसको कंटिन्यू करना है, यानी ऐसे। और यहाँ पर ये पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये जो अपन ने एडिशनल लोड दे दिया यहां पर, ये वाला, ये तो है ही नहीं, एडिशनल ऐड कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो यानी इसको सेम मैग्नीट्यूड का लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन में देना है। अभी ये डाउनवर्ड है, सो हियर आई हैव टू शो लोड लाइक दिस। इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये 10 किलो न्यूटन मीटर और ये 10 किलो न्यूटन मीटर दोनों हो गए कैंसल। इसका मतलब अपन ने कुछ लोड लगा ही नहीं, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो सेम है। अब इस कंडीशन में अगर मैं ये x यहां पे लेता हूं, बराबर है, यहां पर, यानी ये पॉइंट कौन सा है? ये C पॉइंट, C है ना, सेक्शन ये x जो है C पॉइंट तक था। अभी मैं ये जो है सेक्शन यहां लूंगा ये, और ये डिस्टेंस लूंगा x। अब मोमेंट का इक्वेशन ये अपना कैसे बनता है देखो आप। इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो 20 इंटू एक्स होगा, ये 20 इंटू एक्स, और वो भी क्लॉकवाइज 20 इंटू एक्स। मैच हो गई पहली टर्म, बराबर है। सेकंड टर्म मैच हो जाना चाहिए। अब ये यूडीएल कंटिन्यूस है तो 10 इंटू एक्स, ये जो स्पैन है वो बराबर है 10 इंटू एक्स बाय 2 हो गई मैच। ये भी टर्म, दोनों टर्म मैच हो गए अभी, ओके। अब एडिशनल जो यूडीएल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे मोमेंट कैसे देगा? क्लॉकवाइज देगा, वो उसको ऐड करना है यहाँ पर। और ये स्पैन, आगे का स्पैन है ये, बराबर है। सो हियर ये यूडीएल का प्लस, क्योंकि ये अपवर्ड है तो ऐसी मूवमेंट देगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? मैग्नीट्यूड 10। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, प्लस 10 मैग्नीट्यूड, और यूडीएल का इतना स्पैन कितना रहेगा? x माइनस 2, बराबर है। ये टोटल x है, और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक है ये 2 मीटर। तो ये बीच वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा? x माइनस 2, है ना। और उसका सेंट्रोइड x माइनस 2 बाय 2। सो देयरफॉर आई कैन राइट स्क्वायर बाय 2। इसको मल्टीप्लाई किया है x माइनस 2 बाय 2 से, तो x माइनस 2 तो पहले था ही, इसको एक्चुअल ऐसा ही है x माइनस 2 बाय 2 सेंट्रोइड। उसी को मैंने यहां पर लिखा है स्क्वायर बाय 2, और ये हटा दिया, बराबर है। ओके, ये हो गया। अब ये x यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, C से D पॉइंट तक, ये D पॉइंट है अपना, D के लेफ्ट तक। बाद में D के राइट में ये लोड ऐड हो जाएगा, तो अब मेरे को लेना पड़ेगा ये सेक्शन यहां पर, और ये डिस्टेंस रहेगा x मेरा अभी। अब ये जो टर्म्स है ये पूरे रिपीट हो जाना चाहिए, है ना। यहां तो अपनी वर्टिकल लाइन आ गई, ये तीनों वैल्यूज यहां पर मोमेंट सेम देना चाहिए, देंगे। देखो ये पॉइंट लिया है अपन ने, इसका डिस्टेंस है x, तो ये 20 यहां पर आ रहे हैं, में 20 इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव 20 इंटू एक्स, ये हो गई वैल्यू। दूसरा ये यूडीएल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 10 इंटू एक्स बाई 2, इसका मतलब 10 x बाई 2,
10x/2, यहाँ पर x ये लिखा है, मैं यहाँ पे अभी ये तो पता चल गया, समझ गया आपको, तो यहाँ पे /2 लिख देता हूँ। x/2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट टर्म, ये यूडीएल का तो हो गया बराबर, यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना। और तीसरा है ये यूडीएल, ये है अपर डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज बराबर है। अभी अपना ये है यक्स, ये 2 यहाँ से घटाना होगा तो ये यूडीएल बन जाएगा x-2, सो 10 इंटू x-2/2 एंड इट इज स्क्वायर, ये भी हो गया। तो ये सब टर्म अपनी रिपीट हो गए, लिखना नहीं है लेकिन वो मैच हो गई, यानी कहीं पे भी जैसा सेक्शन लेंगे और वहाँ पे अगर मोमेंट लेंगे तो पहले प्रीवियस जो भी अपन ने टर्म्स लिखी है वो एक सेम आ जाना चाहिए। ये मेन थीम है अपनी मैकेलेज मेथड की। यहाँ नहीं हो रहा था, वो मैच करने के लिए अपन ने यूडीएल एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके उसको घटा दिया है। अब बचा है एक्स्ट्रा लोड जो है यहाँ पर 20, सो हियर इट इज 20 इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस 3, सो 3 x-3 पॉइंट लोड, मोमेंट लेना है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये x है और ये 3 है तो x-3 दिस विल बी, तो 20 इंटू x-3, और ये मोमेंट देगा ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट हियर माइनस साइन। ओके, सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हो गया ये। अब ये इक्वेशन के बाद अपना काम होता है 2 बार इंटीग्रेशन करना, है ना। सो हियर ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ei d2y/dx, है ना, स्क्वायर नहीं रहेगा, इसका इंटीग्रेशन किया है, इज इक्वल्स टू, अब है ये 20, सो 20 इंटू x²/2 एक टर्म, दूसरी टर्म -10 इंटू x, हो गया। देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, एक बार इंटीग्रेशन किया तो, और ये C1 कांस्टेंट जो है पहली जो अपनी वर्टिकल डॉटेड लाइन रहेगी उसके अंदर लेना है, पहला स्पैन में उसको जोड़ना है, बराबर है। देन नेक्स्ट टर्म इज दिस वन, सो इट इज 10, देन x-2, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, sorry, here there will be cube and here it is 6. Okay, then it is cube divided by 6, ये डॉटेड लाइन -20 इंटू x-3 square/2. This is our slope equation that we call equation number 1. यह है अपना स्लोप इक्वेशन। ओके ओके, देन नेक्स्ट डबल इंटीग्रेशन, सो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x अपन इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नाउ हियर ei then y dy/dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू हियर 20x³ प्लस, इट इज प्लस साइन, -10 इंटू x⁴, बराबर है, एंड 4 नीचे आएगा, सो here 24 प्लस C1 इंटू x, C1 का इंटीग्रेशन C1x, और यहाँ पर जोड़ना होगा अपने को प्लस C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट
सेकंड इंटीग्रेशन के लिए, एंड ये दोनों C1 C2 जो है ये पहले स्पैन में लेना है, पहली वर्टिकल लाइन से लेना है। ओके, देन ये प्लस 10 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 24, देन डॉटेड लाइन माइनस 20 इंटू x माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, एंड इट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यानी इससे अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे y, ये y, और ये है dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप का इक्वेशन। ओके, नाउ इसमें C1 और C2 जो है ये अपने कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन से अपन निकालते हैं। सो हियर बाउंड्री कंडीशन दैट वी नो एट सपोर्ट्स डिफ्लेक्शन 0, ए और बी सपोर्ट जो है वहां पर डिफ्लेक्शन 0 होता है। सो y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जैसे 0 होंगी तो यहां पर आएंगे, और a पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है। दूसरा वैसे ही y इज इक्वल टू 0 है, यानी वाई बी, ये y पहला वाई ए अपन वो दिख नहीं रहे, वाई बी यानी यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी, टोटल स्पैन दैट इज इक्वल टू 4। ओके, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C1, first we will get C2, it is 0, and C1 is equals to minus 27.5। ये जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब ये कैलकुलेटर के सहारे डायरेक्ट आंसर निकल जाता है ना। तो आप वैसे आप एक्सपर्ट है उसमें, तो आंसर आराम से निकल जाता है। मैंने उसको वैल्यूज़ वहाँ पे पुट नहीं की है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, और ये कैसे निकालना ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो C1 एंड C2 ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ हो गई। अब तीसरा मैं और अवॉइड करने जा रहा हूँ, ये इक्वेशन में C1 डालना और ये इक्वेशन लिखना, यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू डालना और ये इक्वेशन लिखना और बाद में फिर वो करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली वी कैन आंसर द क्वेश्चन। अभी हो गया है, C1 C2 तक जाना है, बाकी सब कैलकुलेटर से करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैकेलेज मेथड वैसे ही लेंदी है, सो इससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको टाइम अपने को सेव करते आना चाहिए, उसकी हैबिट चाहिए। ऐसा डिटेल लिखते गए तो वैसी हैबिट हो जाएगी और फिर आप हिम्मत नहीं करेंगे कि ऐसी छुड़ाने की। ओके, सो हियर अपने को पूछा गया है डिफ्लेक्शन एट C एंड D, बराबर है। सो डिफ्लेक्शन एट C, हमें डिफ्लेक्शन C पे निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोले तो ये 2, इसमें C1 और C2 की वैल्यूज पुट करना है और अलॉन्ग विद दैट EI की वैल्यू। ओके, तो मैं EI की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -5, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, एंड इंटू y है y, और y C है, C पॉइंट का निकाल रहे अपन, इज इक्वल टू, अभी x की वैल्यू 2 पुट करना है। सो हियर प्लस 20 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, बराबर, ये हो गया, माइनस 10 इंटू x की वैल्यू है 2 और रेस्ट टू 4 डिवाइडेड बाय 24, प्लस C1 की वैल्यू जो है ये -27.5, ये मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2, ओके, प्लस C2 एंड C2 की वैल्यू 0 है, बराबर है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो पूरी ब्रैकेट 0, तो ये पूरी टर्म 0, ओके, सो प्लस 0।
अभी यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो -1 आएगा, और ब्रैकेट में अगर -1 आंसर आता है तो वी हैव टू कंसिडर दैट ब्रैकेट इज 0. सो हियर सेकंड टर्म दिस वन इज आल्सो 0. व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ yc. ओके, एंड इट इज इक्वल टू 0.0175 and meter. I can write here 17.5 mm. This is the value of yc. Okay. Similarly, we have to find the value at d. D point पर निकालना है, तो अभी d point बोले तो x is equal to 3. d point कितने डिस्टेंस पे है इसे, अपन x इधर से गिने हैं, तो 2 + 1 it is 3. So put x is equal to 3 in deflection equation, we will get yd. So here next deflection at d. Okay, put x is equal to 3 in equation 2, यानी वही डिफ्लेक्शन का. अभी वहाँ पे वही लिखने जा रहा हूँ मैं, 200 इंटू 10⁶ ई की वैल्यू हो गई ये, देन आई की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻5, ये आई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे है वाई डी, क्योंकि अपन x इज इक्वल टू 3 पुट करने जा रहे हैं, प्लस ये 20 इंटू, ये इक्वेशन अपन यूज कर रहे हैं अपन, ये वाला, इंटू x है 3³ डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया, -10 इंटू x की वैल्यू 3⁴ डिवाइडेड बाय 24, ये इसमें x की वैल्यू पुट की है, देन प्लस c1 है -27.5 और x की वैल्यू है 3, वो भी हो गया. अब यहाँ पे आते हैं प्लस c2 इट इज 0, देन प्लस, अभी यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि x की 3 वैल्यू है और -2 है, तो +1 आंसर आएगा. सो हियर 10 इंटू 3 -2⁴ डिवाइडेड बाय 24, ये हो गया. अब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, सो 3 - 3 बिकम 0, तो होल टर्म विल बी 0, सो -0. फ्रॉम दिस we will get the value of yd is equals to 0.0125 and meter. I can write 12.5 mm. yd is equals to, ये हो गई yd की वैल्यू. Okay, so in this way we have to solve problem on deflection by using मैकेलेज मेथड. यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग मेरे को यही बताना था कि यूडीएल अगर यहाँ पे समाप्त होता है तो उसको एक्सटेंड करना है कहीं पे भी. अभी अगर इसी बीम को अपन इधर से आते थे, है ना, डी पॉइंट से x गिन के ऐसे ऐसे आते थे, तो यूडीएल यहाँ लगता है और बाद में वो कंटिन्यू है, तो यहाँ पे एडिशनल यूडीएल देने की जरूरत नहीं है. यही ये बीम, इसमें अगर यूडीएल यहाँ पर है ना, और यहाँ पे कोई लोड वगैरह है, अपन x डिस्टेंस यहाँ से गिन रहे हैं. ओके, पहले x यहाँ गिना, यहाँ गिना, बाद में फिर अपन यहाँ पे चले गए x गिन के. ओके, जैसे ही यूडीएल लग गए, इक्वेशन में टर्म यूडीएल की आ गई, वो कंटिन्यू एंड तक रहना चाहिए. तो यहाँ पे लगने के बाद में यूडीएल स्टार्ट हुआ और एंड तक चले गए, तो यहाँ पे एडिशनल यूडीएल देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अपने केस में क्या हो रहा है कि यूडीएल बीच में आ रहा है. अगर कोई यूडीएल ऐसे है, जैसे ही यूडीएल स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर अपने को इसको एक्सटेंड करना होगा, और एक्सटेंड जो किया है उसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो है अपने को यूडीएल, यानी एक बार यूडीएल अगर स्टार्ट होता है तो एंड तक यूडीएल कंटिन्यू रहना चाहिए. इसके पहले मैंने जो बताया था अभी, यहाँ पर ऐसा है यूडीएल, बराबर है, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो गया और एंड तक है. यहाँ पर एंड तक नहीं था, इसलिए अपन ने एक्सटेंड किया उसको.
वहाँ पे भी एंड तक नहीं था, ये यहाँ तक ही समाप्त हो रहा था, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। तो ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है इस मैकेलेज मेथड में, वो मेरे को यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से बता था, इस प्रॉब्लम में बताना था। ओके, ये दोनों माइनस है और माइनस यानी डाउनवर्ड। ओके, डिप्लेशन विल बी ऑकर इन डाउनवर्ड, क्योंकि मीडियम ऐसा है तो नेचुरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिप्लेशन आएगा। नाउ वी सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंप्यूट डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है इस बीम का, एज शोन इन फिगर, बीम इज शोन इन फिगर दिया है। हियर देयर इज हिंज सपोर्ट, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, ए बी सी डी, ये 2 मीटर पे एक कपल है मोमेंट, और यहाँ पर पॉइंट और ओवरहैंग बीम है ये। ओके, टेक E is equals to 210 GPa and I is equals to 2 into 10 raised to 7 mm raised to 4। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले E और I अपन किलो न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो E is equals to 210 GPa is given। We know G stands for 10 raised to 9, M stands for 10 raised to 6, ये दोनों में डिफरेंस है 10 raised to 3 का। सो यहाँ पर अपना जो रेगुलर है MPa, यहाँ पर 10 raised to 3 लिख सकता हूँ मैं, बराबर है। ये अपने को MPa यानी न्यूटन पर स्क्वायर mm ये पता है, इसलिए सो यहाँ पर MPa बोले तो न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, अपने को कन्वीनियंट है वो, उसका मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि उसका कन्वर्सन कैसे करना। अभी यहाँ पर 210 10 raised to power 3 ये न्यूटन है, तो न्यूटन का कन्वर्शन किलो न्यूटन में 10 raised to 3 यानी 1000 की जगह 10 raised to 3 लिखा है। देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में mm स्क्वायर डिनोमिनेटर, अब 1 mm इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1/1000 मीटर, देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 3 एंड कंप्लीटली इट इज स्क्वायर, क्योंकि mm स्क्वायर है। सो हियर वी विल गेट आंसर 210 into 10 raised to power 6 किलो न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू मिल गई अपने को। अब निकलना है I, निकलना है ना, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना I, बराबर है। सो हियर इट इज 2 into 10 raised to power 7 mm है, तो mm का मीटर कर दिया मैंने यहाँ पर 10 raised to 3, तो ये हो जाएगा 10 raised to 12। सो हियर द फाइनल आंसर विल बी I इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power -5 एंड मीटर स्क्वायर, मीटर raised to 4 हो गया I की वैल्यू। तो E और I ये किलो न्यूटन और मीटर में मैंने कन्वर्ट पहले कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंग बीम में रिएक्शन रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट रिएक्शन। कैंटिलीवर में रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, तो जो भी उसका फ्री एंड रहेगा वहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। कोई भी एंड से स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन बीच में आएगी, इधर से गए तो रिएक्शन आएगी, इधर से गए तो भी रिएक्शन आएगी। ओके, सो समेशन MA इज इक्वल टू 0, taking moment about A point, hinge point 0. So here 15 into कुछ नहीं रहेगा क्योंकि मोमेंट है और इक्वेशन मोमेंट का है, मोमेंट को फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और वो क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 15। देन RC ये जो रिएक्शन है इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा, एज्यूम करने जा रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, एज्यूम कर लिया मैंने अपवर्ड। ये है वैल्यू RC की। ओके, हाँ, वो जो फोर्स है वो RC है। सो हियर
RC इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, और अब ये जो मोमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस माइनस। देन नेक्स्ट 30 इंटू ये डिस्टेंस है 4, 2 + 1 + 1 4, और ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव, एंड इट इक्वल्स टू 0 एज पर कंडीशन, समेशन में 0 हो गया। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RC इज इक्वल्स टू 45 किलो न्यूटन। ये वैल्यू मिल गई अपने को, RC की वैल्यू आ गई, एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। देन नेक्स्ट कंडीशन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब Fy की लगेंगे, हो गए। सो अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y डायरेक्शन, RA जो है ये पॉजिटिव मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर RA जो है ये भी अपवर्ड ही कंसीडर कर दिया है, और RC तो ऑलरेडी कंसीडर किया है अपवर्ड, और आंसर पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव आंसर होने की वजह से अपनी एजम्पशन जो है करेक्ट हो गया। अब RA अपवर्ड है प्लस RC भी अपवर्ड कंसीडर किया है, और डाउनवर्ड मोमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि फोर्स का इक्वेशन है, फोर्स में मोमेंट नहीं आएगी, ओनली 30, सो 30 डाउनवर्ड है तो माइनस एंड इक्वल्स टू 0। RC की वैल्यू ऑलरेडी 45 निकाल चुके हैं। RC यहाँ पे जब पुट करूँगा 45 तो यहाँ पे 15 आंसर आएगा, और वो भी पॉजिटिव। जैसे ही 15 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वेट करने के लिए, RA कितना है तो माइनस आंसर आएगा। सो RA इज इक्वल्स टू -15 किलो न्यूटन। अपन ने एजम्पशन किया है अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आंसर निगेटिव आया है, इसका मतलब अपना एजम्पशन जो है ये रॉन्ग हो गया है। सो RA शुड बी डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई RA इज इक्वल्स टू 15 एंड इट इज इक्वल्स टू 45, ये और ये 15 हो गया, एंड देयरफॉर आई कैन राइट 15 किलो न्यूटन एंड आई शो एरो डाउनवर्ड, RA इज इक्वल्स टू, ये ऐसे बताना होगा। ओके, अब ये 15 किया है लेकिन यहाँ पे एरो डाउनवर्ड बता दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी नो, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन EI d2y बाय dx² इज इक्वल टू mx। This is our basic equation for differential equation for finding out deflection and slope. Okay, Macaulay's method ने दिया है। Here I am going to make equation, mx निकाल रहा हूँ। अभी ये टर्म मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे अपन। ओके, इक्वल टू, ये स्पेस एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक एक चीज मैं पहले यहाँ पर x ले लूँ, और ये डिस्टेंस जो है ये x कंसीडर करूँ, x, और वहाँ पे मोमेंट लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर -15 इंटू x, -15 इंटू x। x वेरी कर सकते हैं, लिमिट क्या रहेंगी a से b तक, b के लेफ्ट साइड तक, क्योंकि मोमेंट कंसीडर नहीं करना है, मोमेंट आगे कंसीडर करेंगे। हो गया, ये जो स्पैन है अपना ये है A to B स्पैन है। हो गया, अब यहाँ पर डॉटेड लाइन, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, अभी ये जो सेक्शन है मैं यहाँ कंसीडर करूँगा, और अब ये डिस्टेंस जो है ये x कंसीडर करूँगा, इसे x हो गया यहाँ पर। अब मोमेंट लूँगा तो पहली टर्म रिपीट होना चाहिए, इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो 15 इंटू x, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेंगी, 15 इंटू x माइनस लिख दिए। नेक्स्ट टर्म है 15 किलो न्यूटन मीटर, वो मोमेंट है। अब ये इक्वेशन बन रहा है मोमेंट का, बराबर है, तो यहाँ पर यह आएगा 15, कौन सी मोमेंट है, क्लॉकवाइज, सो इट पुट हियर पॉजिटिव साइन। अब उसको मल्टीप्लाई तो अपन डिस्टेंस से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन जो है ये आना चाहिए, इसलिए आपको ये पता है x इज इक्वल, व्हेन x रेज टू 0 आंसर बिकम्स 1।
इसका यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो आंसर 1 आना चाहिए। अब ये जो है यहां से यहां तक x है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x माइनस ये 2, तो यहां मैं लिख देता हूं x माइनस 2। लेकिन मोमेंट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंट का इक्वेशन है, हो गया मोमेंट। तो मैकेलेज रेकमेंड हियर इट 0। अगर यहां मैं ये 0 कर देता हूं तो ये टर्म 1 हो गई, बोले तो 50 नहीं लिया, हो गया, तो मोमेंट ही हो। सो हियर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए ये प्रॉब्लम लिया गया है कि मैकेलेज मेथड में अभी यहां पर 0 करना है। देन नेक्स्ट, ये तो हो गए डॉटेड लाइन। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे ये स्पैन में यहां पर, और ये डिस्टेंस अभी गिनेंगे अपन x, ये वाला हो गया। सो हियर इट इज 45 इंटू x माइनस यहां से यहां तक 3, ओके, एंड इट कॉजेस क्लॉकवाइज मोमेंट, सो पुट पॉजिटिव साइन। जैसे ही ये लेंगे तो बाकी आगे के टर्म्स रिपीट होना चाहिए, हो रही है। इस पॉइंट पर मोमेंट ले रहे सभी फोर्सेस की, तो पहला फोर्स 15 इंटू एक्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये लिख दिया अपन ने। इसी पॉइंट पर इसकी मोमेंट लेंगे तो 15 और इंटू ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स माइनस 2 और रेस टू 2 0, रेस टू 0 हो गया, ये भी हो गया। और बचा हुआ 45 इंटू ये डिस्टेंस है, ये सिर्फ ये दोनों के बीच वाला है ना, तो ये टोटल x है, यहां से ये 3 माइनस करना होगा, हो गया। दिस इज द इक्वेशन, मेन इक्वेशन। अभी इसको अपने को स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बनाना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन ei dy बाय dx, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यहां पर -15 x स्क्वेयर बाय 2। देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन हो गए तो वो पहले डॉटेड लाइन में, पहले स्पैन में, बराबर है। ये स्पैन ए बी था, ये बी सी है, और ये सी डी स्पैन है 3। ये जो स्पैन के लिए एक्चुअली ये डॉटेड लाइन रहती है, लेकिन अपन ने क्या किया है, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि ब्रैकेट में अगर 0 माइनस आंसर आ जाता है तो टर्म कंसीडर 0, तो उसमें ये मेन काम नहीं होता है। सिर्फ इसमें एक काम है कि C1 और C2 जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये अपने को पहली वर्टिकल लाइन के अंदर लेना है, पहले वर्टिकल लाइन के अंदर, बराबर है। तो कहाँ का भी डिफ्लेक्शन या स्लोप निकलना है तो C1 C2 की टर्म्स आना ही चाहिए, ये उसके मेन थीम है। बाकी ये जो स्पैन के लिए, अदरवाइज इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन BC स्पैन के अंदर निकालना है तो यहां तक टर्म यूज करो, पहली और दूसरी, और CD के बीच में अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको 1 2 3 टर्म यूज करो, ऐसा है। लेकिन अपन क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में अगर माइनस है तो इट इज 0, तो ये सब हो जाएगा बराबर, ऑटोमेटिक हो गया। देन अभी इसका ये है +15, इसका इंटीग्रेशन, अब x -2 और रेस टू 1 एंड 1। अब ये पिक्चर में आ गया, अब 0 नहीं, 1 नहीं, यहाँ पर 1 था, लेकिन अभी 1 से पावर 0 से 1 हो गई पावर, तो ये अभी इक्वेशन में इसके इफेक्ट अपने को दिखेंगे स्लोप में, वैसे ही रिफ्लेक्शन में दिखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट +45 इंटू x -3 एंड हियर इट इज स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, हो गया ये इंटीग्रेशन। देन फर्दर इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा अभी, ई आई और वाई, ये टर्म का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू -15 यक्स क्यूब बाय 6। यक्स स्क्वेयर है तो यक्स क्यूब हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस C1 एक्स, C1 का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन अपन ने दोबारा किया है तो दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने को यहाँ पे ऐड करना होगा एंड देन डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन। नेक्स्ट टर्म इज +15 यक्स -2, ये या 0 1 और बाद में यहाँ पे अभी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, ये टर्म हो गई। अभी ये टर्म +45 यक्स -3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। ओके, तो अपने ये दोनों इक्वेशन हो गए। दिस इज इक्वेशन you can use for slope equation and equation number 1। अब ये जो है ये है अपना डिफ्लेक्शन इक्वेशन, जिसके सहारे अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये C1 एंड C2 इसको इवेल्युएट करना, निकालना उसको। ओके, सो हियर वी यूज बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y इज इक्वल टू 0। y कहाँ का 0 है, डिफ्लेक्शन A पॉइंट पे और दूसरा C पॉइंट, A और C, यहां पर नहीं, यहां पे तो बीम डिफ्लेक्ट होगी, है ना, A और C। सो हियर y A इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, y C इज इक्वल टू 0, यहाँ वाई सी लिखा है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, वाई लिखा तो भी चलेगा, एट यक्स इज इक्वल टू, यक्स की वैल्यू कितनी रहेंगी सी तक जाने के लिए 3, 2 + 1, सो इट इज 3 मीटर। ये है बाउंड्री कंडीशन। तो पहली कंडीशन मैं यूज करने जा रहा हूं, है ना। सो हियर इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में वाई की 0 बोले तो पूरी टर्म 0, यक्स 0 तो ये 0, यहाँ पे भी x है +0 प्लस C2 बराबर है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 करूंगा तो ब्रैकेट में -2 आंसर आएगा। अगर माइनस आंसर ब्रैकेट में आता है तो वो 0, ये 0 +0 और ये भी टर्म फिर से यहाँ पे भी -3 आएगा 0। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C2 इट इक्वल्स टू 0। ये हो गया C2। देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन, y C इज ऑल्सो 0 इट इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू पुट करेंगे -15 यक्स 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दिया है, प्लस C1 इंटू 3, x की वैल्यू 3 प्लस C2 ऑलरेडी 0 कैलकुलेट कर चुके हैं, देन प्लस 15 x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करना है, 3 -2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आंसर बिकम्स 0। ओके, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C1 इज +20। अब यहां पर ये जो है ये +i है आंसर। अभी तक अपन ने जो प्रॉब्लम स्लिमली सपोर्टेड बीम के छुड़ाए वहां पर निगेटिव आंसर आया, इसलिए मैंने इस बात पर फोकस नहीं किया है कि C2 की वैल्यू 0 आती है और बाद में C1 की वैल्यू निगेटिव आती है, इसलिए तो फिर उसमें क्या है कन्फ्यूजन, यानी कभी कभी सिली मिस्टेक हो सकती है कि निगेटिव, अब यहाँ पे निगेटिव नहीं आया तो आपको लगेगा ये निगेटिव क्यों नहीं है, फिर दोबारा चेक करेंगे, वो हो सकता है, या तो फिर
ऐसा होता है कि C1 की वैल्यू निगेटिव बता दी है, मैंने सर ने बता दिया कि C1 की वैल्यू निगेटिव आती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आने के बाद में भी गलती से यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे तो पूरा प्रॉब्लम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए उस बात पे मैंने फोकस नहीं किया है कि बीम कोई भी कैसी भी रहो तो C1 C2 की वैल्यू एक्चुअल निकालेंगे। ओके, नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन एट बी। बस ये C1 C2 और यस की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, कोई दूसरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। डिफ्लेक्शन पूछा है तो ये इक्वेशन ऑपरेट करना पड़ेगा, और डिफ्लेक्शन एट बी पूछा है बी, तो यहाँ से यस गिने अपन ने सब, तो बी का डिस्टेंस ए से कितना है 2, तो यस इज इक्वल टू टी 2। ओके, डिफ्लेक्शन एट बी, पुट x is equals to 2 मीटर इन इक्वेशन 2, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हियर E की वैल्यू 210 इंटू 10 टू द पावर 6 E की वैल्यू बराबर है। देन यहाँ पे E चाहिए, I चाहिए, I की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 और बाद में y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है -15, यस की वैल्यू 2, ये क्यूब डिवाइडेड बाय 6, प्लस C1 की वैल्यू 20, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है लेकिन ये हो गया प्लस, ये इंटू यक्स मीन्स 2, प्लस C2 की वैल्यू 0 है, प्लस 15, यहाँ पर यस की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यक्स 2 - 2 0, और यहाँ पे यस की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आंसर 2 - 3 -1 आएगा, ब्रैकेट में माइनस है तो ये पूरा ब्रैकेट 0, तो होल टर्म विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड इट इज ऑल्सो 0। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट y इज इक्वल टू 0.00476 meter. Now y is equals to, it is positive, it is also positive 4.76 and mm. Here the answers are positive. It indicate that अभी तक क्या है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू अपनी माइनस आती थी, माइनस यानी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता था, अब इस केस में आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो अपर डायरेक्शन में है। सो इट इज, आई कैन स्टेट अपवर्ड। डिफ्लेक्शन अपवर्ड। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज द बीम, ओके, रेस्टिंग हियर, देयर इज सपोर्ट्स, ए लोड, यहाँ पर एक लोड है और यहाँ पर मोमेंट है, बराबर है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है ऐसी। ओके, सो बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ये डिफ्लेक्टेड शेप हो गया, और ये जो है ये है अपना y, तो डिफ्लेक्शन ये अपर डायरेक्शन में आ गया इस केस में। ओके, क्योंकि ये लोड जो है ये भी उसको प्रेस कर रहा है और ये मोमेंट भी उसको ऊपर लेके जा रही, बराबर है। ये बीम है, यहां पर लोड है, तो ये लोड नेचुरली ऐसे नीचे लेके जाएगा। अब ये है ना, तो ये बीम यहां पे इस पोर्शन में देखिए आप, ये अपवर्ड गई, बराबर है, और रिएक्शन भी, मोमेंट भी ऐसी है, ऐसी आ रही हो, बराबर है, तो बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ओके, so in this way we can solve problems on slope and deflection by using Macaulay's method। तो यहाँ पे वेराइटीज जो है वो मैंने अभी सभी कवर कर दिया, कैसे भी लोड अगर आए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। पॉइंट लोड का भी ले लिया है, यूडीएल है तो उसको कैसे कर सकते हैं, और खास करके मोमेंट है तो क्या है, ये हो गया। वेरिंग लोड देयर इज नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे सिर्फ जो है एक यस जो है एक पावर बढ़ जाएगी वेरिंग लोड की वजह से, वो यक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे क्यूब आएगा, उतना ही वो चेंज आएगा। ओके।